बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे अपने घरों पे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लेक्चर नंबर 7 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। अब ये पोएम किस बारे में है ये मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे थोड़ा सा पोएट के बारे में, then we'll get to know that what the poem is about, and afterwards we'll move toward the text and then exercise and all that. So start करते हैं poem के poet के introduction को लेकर। So let's begin. जी students, today we are going to read poem of unit 2 named as The Newcomer by Brian Patton. Before starting with the text of the poem, let's get ourselves introduced with the poet. So here is a smiling poet. He was born in England in 1946. At first he was a column writer. Afterwards he became a poet. Through his columns he met different poets, so he started writing poetry. He wrote poems for adults as well as for kids. बच्चों के लिए भी उसने poems लिखी हैं और बड़ों के लिए भी लिखी हैं. His poetry has blend of seriousness and humor. यही है इस poet की खूबी कि इसकी poetry में humor भी है और seriousness भी है, यानी अगर serious बातें हैं तो मजाक भी है. So पढ़ने वाला poetry से bore नहीं होता. Let's discuss what the poem is about. The poem is about a newcomer. Newcomer, कौन है newcomer? Human. Human in animal kingdom. Newcomer है एक इंसान जानवरों की दुनिया में. So we are going to know how animal feel. कैसा महसूस करते हैं जानवर जब कोई newcomer आता है. We'll read कि फ़िश कैसा महसूस करती है, बर्ड्स कैसा महसूस करते हैं, and different other animals when they encounter a newcomer. And who is the newcomer? That is a human. The news of the newcomer was spreading fast to the kingdom of animals. जानवरों की दुनिया में एक newcomer की खबर तेज़ी से फैल रही थी. The newcomer is very strange in appearance. Strange in appearance for the animals, like animals have fins, animals have fur, लेकिन human के नहीं है. Birds have wings, but human doesn't. So it has no physical similarity of the animals. It has no beak, चूंच नहीं है उस newcomer की, claws, पंजे नहीं हैं, feathers, body पे हल्के हल्के से पर नहीं हैं, no scales, no fur, and no gills. गलफड़े भी नहीं हैं उसके. But it lives in the trees. लेकिन वो कहाँ रहता है? Trees में रह सकता है. Water, पानी में रह सकता है. देखिए, not scales, not gills, but still the newcomer can live in water. In the soil, मट्टी में भी रह सकता है. Snow and the hills. It means the newcomer doesn't relate with the animals in appearance, but still he can live in any environment. So the poet is discussing the abilities. He is praising the abilities and qualities of man. कि उसके पास animal like claws, feathers, scale तो नहीं है, but still he can adapt himself according to the environment. Actually, the newcomer here stands for human. The arrival of man brings destruction, because the only thing it does is killing the other creatures. पहले poet discuss करेगा about abilities and qualities of man. Afterwards, in the last paragraph, he will tell us what are shortcomings. Shortcomings क्या हैं? Evil, inhuman, that kills for no purpose. Like he kills animal just for killing, just for pleasure. So animals are scared of man. Human beings can live and adapt to any sort of climate and overcome the obstacles faced by other creatures. Praise कर रहा है poet, तारीफ कर रहा है इंसान की
कि वो किसी भी हर्डल्स को फेस कर सकता है जो कि दूसरे क्रिएचर्स नहीं कर सकते, और ख़ुद को किसी भी क्लाइमेट, किसी भी आबो हवा के मुताबिक ढाल लेता है। पोएट बात करता है पानी में रह सकता है इंसान, पानी में जा सकता है, फिर ग्लेशियर्स की बात करता है, ठीक है। सो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर ह्यूमन कैन सर्वाइव। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज abilities. But we can have a terrible power to kill off other creatures. लेकिन इंसानों की बुरी चीज़ क्या है कि वो दूसरे creatures को मारते हैं। Here the poet is discussing about the creatures, other creatures like animals, that human kill animals. But we know that a man can also kill other man. इंसान दूसरे इंसानों को भी मार सकते हैं। So this is shortcoming. This is something that is very terrible about human. The presence of this stranger is a great danger to their existence. कि इस stranger की जो presence है वो उन creatures के लिए एक danger है, उनकी existence के लिए। I hope कि आपको समझ आ गई है what the poet is talking about. So let's start with the text of the poem. The newcomer. कौन है newcomer? इंसान, human. और कहाँ पे है वो newcomer? In the environment of, in the kingdom of animals. So start करते हैं with the text. There is something new in the river. किस इन्वायरमेंट की बात हो रही है? एक्वेटिक, पानी में। सो दरिया में कुछ नया है। द फिश सेड एज इट स्वैम। जब वो तैर रही थी तो मछली ने कहा इट्स गॉट नो स्केल्स। नो स्केल्स, स्केल्स नहीं है उसके ऊपर, नो फिन्स एंड नो गिल्स, उसके गलफड़े भी नहीं है। गिल्स जो फिश होती है उसके फेस के पास लाइक नेक पे होते हैं, आपने कभी देखे होंगे। थ्रू दैट फिश ब्रीथ and ignored the impossible dam. Impossible dam. Impossible something पास होता है मतलब गुजर जाना, passable ऐसी जगह जहाँ से गुजरा जा सकता हो। Impossible यानी वो जगह जहाँ से गुजरा ना जा सकता हो। It means the place that is very difficult to pass through. So impossible dams को वो ignore कर देता है। Man is not afraid of impossible dam. यहाँ पे पोएट प्रेज कर रहा है दैट ह्यूमन आर डेयरिंग, दे आर एनर्जेटिक एंड दे आर करेजियस। जी फर्स्ट पैसेज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पूरे पैसेज में क्या बात कर रहा है पोएट? द फिश सीज समथिंग न्यू इन द वाटर विच हैज़ नेवर सीन बिफोर, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ फॉरेन टू इट, यानी कोई आउटसाइडर है मछली के लिए वो। समथिंग नॉट नेचुरली सीन इन द रिवर, इट डजेंट लुक लाइक अदर थिंग्स। बाकी जो चीज़ें हैं अदर थिंग्स इन द वाटर उन जैसी वो नहीं दिखती है, वो क्रिएचर उन जैसा नहीं दिखता। एंड इट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डैम, और वो डैम से भी खौफज़दा नहीं है। नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। देयर इज समथिंग न्यू इन द ट्रीज। अब बात हो रही है बर्ड्स की। सो देयर इज समथिंग न्यू इन द ट्रीज। आई हर्ड अ ब्लॉटेड थ्रश सिंग। मैंने सुना एक बड़े बर्ड को, थ्रश इज अ काइंड ऑफ बर्ड, वो गा रहा था कि ट्रीज में कुछ नया है। इट्स गॉट नो बीक, नो क्लॉज एंड नो फेदर्स, कि उसके न तो चूंच है, न पंजे हैं, न ही फेदर्स हैं। एंड नॉट इवन द गोस्ट ऑफ अ विंग। गोस्ट ऑफ अ विंग मीन्स उसके बिल्कुल भी पर नहीं है, किसी किस्म के कोई पर नहीं है। सो यहाँ इस पैसेज में पोएट बात कर रहा है बर्ड्स की, कि बर्ड्स कह रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में एक न्यू पर्सन आया है, एक कोई न्यू क्रिएचर है जिसकी ना बीक है, ना क्लॉ है, ना फीदर है, ना ही उसके विंग्स हैं, बट स्टिल इट कैन फ्लाई। देयर इज समथिंग न्यू इन द ट्रीज। अ थ्रश वॉज सिंगिंग टू अदर बर्ड्स।
It warns them that the creature has no beak, claws, no feathers. There is, though the creature is wingless, मतलब wing नहीं है, but still it flies. लेकिन फिर भी वो creature उड़ सकता है. Moving to the next passage, there is something new in the warren. There is something new in the warren. अब एक नई चीज़ है एक ऐसी जगह पे. warren is a place जहाँ पर रैबिट अपना खुदाई करके अपने लिए सुराख, अपने रहने की जगह बनाते हैं. Said the rabbit to the doe. अब रैबिट किसे बता रहा है? दूसरे एनिमल को, लाइक हिरनी को बता रहा है. इट्स गॉट नो फर, उसकी बॉडी पे फर नहीं है. नो आइज एंड नो पाज, येट डिग्स डीपर देन वी डेयर्ड गो. अब रैबिट क्या बता रहा है कि एक ऐसा क्रिएचर है जो कि हमसे नहीं मिलता. उसकी हमारे जैसी बॉडी नहीं है, हमारे जैसे पॉज नहीं है, फर नहीं है, बट स्टिल वो जो क्रिएचर है वो बहुत डीपर डिग कर सकता है. इतना तो हम सोच भी नहीं सकते जितना वो क्रिएचर कर सकता है. इट मीन्स हेयर रैबिट इज डिस्क्राइबिंग अनदर क्वालिटी ऑफ मैन. पोइट्स जो है अगेन प्रेज कर रहे हैं ह्यूमन को, दैट ह्यूमन कैन डग डीपर देन अदर एनिमल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज, देयर इज समथिंग न्यू इन द वाइटनेस. अब एक और क्लाइमेट की बात हो रही है, लाइक जहाँ पर बहुत स्नो होती है. वाइटनेस हेयर इज़ रेफरिंग टू समवेयर जहाँ बहुत सी स्नो हो. सेट द स्नो ब्राइट पोलर बियर. एक बर्फानी भालू ने कहा. आई सो इट्स शेडो ऑन द ग्लेशियर. मैंने ग्लेशियर में उसका शेडो देखा है, बट इट लेफ्ट नो पॉ मार्क देयर. लेकिन वो वहाँ पे कोई भी निशान नहीं छोड़ता है. 3-4 तरह के क्लाइमेट्स की बात हुई है. अब मूव करते हैं लास्ट पैसेज की तरफ. थ्रू द एनिमल किंगडम द न्यूज़ वॉज स्प्रेडिंग फास्ट. नो बीक, नो क्लॉज, नो feather, no scale, no fur, no gills. It lives in the trees and the water, in the soil and snow and the hills. And it kills and it kills and it kills. इस लास्ट लाइन को छोड़ के पूरी पोएम में पोएट इज जस्ट प्रेजिंग ह्यूमन. लास्ट लाइन गिव इम्प्रेशन दैट ह्यूमन हैव ऑल्सो शॉर्टकमिंग्स, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, कि इंसान जो हैं मार देते हैं, कत्ल करते हैं. यहाँ बात हो रही है एनिमल्स की, दैट ह्यूमन kill animals for no purpose, just for killing, just for pleasure. The news of the newcomer was spreading fast through the kingdom of animals. Animals की दुनिया में एक न्यूकमर की खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है. It has no physical similarities of animals. Animals के साथ उसकी physical similarity भी नहीं है, मतलब it's quite different. It has no beak, no claws, no feather, no scale, no fur, no gills. मतलब एनिमल्स जैसा उसमें कुछ भी नहीं है, बट स्टिल इट कैन लिव इन ट्रीज. पानी में भी रह सकती है, इन द सोइल, मिट्टी पे भी रह सकता है इंसान, स्नो एंड द हिल्स. द ओनली थिंग इट डज, वो कहीं पर भी रहे, लेकिन किसी भी क्लाइमेट में रहे, किसी भी इन्वायरमेंट में रहे, बट द ओनली थिंग अ ह्यूमन कैन डू इज किलिंग, दैट इट डज किलिंग द अदर क्रिएचर्स, कि वो दूसरे क्रिएचर्स को मारते हैं. सो ये शॉर्टकमिंग पोइट ने डिस्कस की है. इस पोएम में पोइट एक्चुअली हाईलाइट करना चाहता है कि एनिमल्स की किलिंग को रोकना चाहिए, इसको इलीगल करना चाहिए, और ह्यूमन इंसानों को चाहिए कि वो एनिमल्स को हार्म नहीं करें. आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी इस पोएम की कि पोइट क्या बात कर रहा है और वो क्या कहना चाहता है. लेट्स मूव टुवर्ड द समरी ऑफ द पोएम द न्यू कमर. समरी आपके नोट्स में मौजूद है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द पोएट ब्रायन पैटन गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ अ न्यू कमर. न्यू कमर इज ह्यूमन बीइंग विद द एनिमल्स. एनिमल्स के साथ इंसान के इंटरेक्शन के बारे में तो डिटेल्ड बताता है पोएट. These animals consider him destructive. अब
एनिमल क्या समझते हैं कि इंसान डिस्ट्रक्टिव है, ह्यूमन जस्ट डिस्ट्रॉयज, हमेशा सिर्फ तबाही मचाता है. द न्यूज़ स्प्रेड अबाउट द न्यू कमर फ्रॉम द फिश टू द अदर फिश, फ्रॉम द रैबिट टू द डो एंड फाइनली फ्रॉम द पोलर बियर टू द अदर्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज. हर एरिया में एनिमल जो हैं एक दूसरे को ये खबर दे रहे हैं अबाउट द ह्यूमन, और क्या बता रहे हैं, दैट द ह्यूमन डिस्ट्रक्ट्स. They get information that a stranger has appeared who is different and strange in appearance. वो क्या बता रहे हैं एक दूसरे को कि एक stranger, एक अजनबी जाहिर हुआ है जो कि appearance में उनसे quite different है. It is different and does not resemble the animal kingdom. और animal की दुनिया में वो बिल्कुल मैच नहीं करता है, resemble होता है मैच करना. It has no gills, no claws and no wings. Even then, it can swim, walk and fly like all of them. यहाँ पर प्रेज किया जा रहा है कि गिल्स नहीं है, क्लॉज नहीं है, विंग नहीं है, स्टिल a human can swim. Without gills, without fins, without scales, human can swim. It can walk and it can fly without wings. The news about this creature has created fear that it kills and kills and kills with all its evil intention. और साथ में क्या ख़बर फैली है कि ये जो ह्यूमन है इससे सब खौफज़दा हैं, इससे डरना चाहिए, बिकॉज वो क्या करता है इंसान, इट किल्स एंड किल्स एंड किल्स, सिर्फ मारता है विद ऑल इट्स ईवल इंटेंशन, और उसकी ईवल हैं यानी बुरी इंटेंशंस हैं. समरी रीड करने के बाद ओपन कर लीजिए MCQs. I just have written answers, one correct answer of each MCQ. The first one is thrush. क्या है ये? एक bird है, a type of bird. Deer, challenge. Next is doe. Doe क्या होता है? एक female deer, हिरनी. Impossible means, मैंने आपको पोएम में भी एक्सप्लेन किया है, इम्पॉसिबल यानी ऐसी जगह जिसको पास करना बहुत मुश्किल हो. इम्पॉसिबल टू ट्रैवल अलॉन्ग. देयर इज समथिंग न्यू इन द वर्ल्ड. इन दिस सेंटेंस समथिंग क्या है? समथिंग इज अ प्रोनाउन. एंड व्हाट इज प्रोनाउन? यू शुड राइट इट ऑन योर नोट्स दैट प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी एक वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज हो, और समथिंग है प्रोनाउन. बट इट लेफ्ट नो पॉ मार्क देयर. लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके जूतों कोई भी पैरों के निशान वो नहीं छोड़ता. बट इट लेफ्ट, बट इज अ कंजंक्शन, इट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन इज हियर वर्किंग एज सब्जेक्ट, सो इट के बाद लेफ्ट इज अ वर्ब. अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि वर्ब होता है एक एक्शन वर्ड. क्या होता है? एक्शन वर्ड, लाइक वॉक, टॉक, राइट. सो ये सब क्या है? वर्ब्स. इट्स गॉट नो स्केल्स. इट इज़ फ्रॉम टेक्स्ट. नो fins एंड नो गिल्स. आगे चलते हैं. एंड नॉट इवन द गोस्ट ऑफ विंग्स. ये भी टेक्स्ट में से हैं. Again, 9th MCQs is from the text. The news was spreading fast. 10. What is silent letter in autumn? Autumn में silent letter क्या है? Pronounce autumn. The last N is not pronounced, so N is silent. Rain. क्या silent है इसमें? Repeating again. Rain. G is silent. MCQs number 12. Subtle. Don't pronounce it like subtle, so it's subtle. B is silent. What is synonym of earring? Earring का synonym बताना है. Synonym होता है like meaning, एक word जिसका earring जैसा ही meaning हो, words with same meaning. So earring is spreading, फैलाना. 14 is meaning बताना है. Obliterate is destroy, तबाह करना. The synonym of ignores. Ignore का synonym is disregard.
ना ओपन क्वेश्चन आंसर्स को भी हम रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द एनिमल्स फील अबाउट द न्यू कमर के बारे में एनिमल्स कैसा फील करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द मेन इमोशन इन द पोएम, कि इमोशन क्या है असल पोएम में। एनिमल्स आर वरीड, बहुत खौफजदा है एनिमल्स। द मेन इमोशन इन द पोएम इज ऑफ रेस्टलेसनेस, यानी वहाँ पर सुकून नहीं है, चैन नहीं है पोएम में। देयर इज़ नो पीस, देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव इन दिस पोएम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड यूज़ किया गया, लाइक नो स्किल्स, नो फिन्स, नो गिल्स। सो नो का वर्ड अगेन एंड अगेन यूज़ किया गया, नेगेटिव। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वर्ड नो, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बार बार वर्ड नो का यूज़ करने का क्या मकसद है। द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड नो गिव्स एन इफेक्ट ऑफ हॉरर एंड सैडनेस, यानी खौफ और उदासी के लिए वर्ड नो अगेन एंड अगेन यूज़ किया गया है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच ह्यूमैनिटी डज नॉट किल एंड किल एंड किल, व्हाट वुड दिस बी लाइक। क्या आप एक ऐसी वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर इंसान किसी को भी कत्ल ना करे, वो दुनिया कैसी होगी। द वर्ल्ड इन विच ह्यूमन डजंट किल एंड किल एंड किल वुड बी अ बेटर प्लेस, वो एक अच्छी और बेहतर रहने की जगह होगी। किलिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ किलिंग शुड बी स्टॉप्ड, यानी मारना किसी भी वजह के बगैर मार देना, इसको रोका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक दैट दिस पोएम इज़ फेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्या इंसानों के साथ ठीक रवैया इख्तियार किया गया है इस पोएम में। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया गया है, बिकॉज द पोएम इज़ डिस्कसिंग द फैक्ट, ट्रूथ, सो सच है ये। आई थिंक दिस पोएम इज़ फेयर टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट टेल्स द पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज देयर शॉर्टकमिंग्स। दोनों तरह की बातें हो रही हैं, ट्रूथ है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को भी डिस्कस किया गया है और शॉर्टकमिंग्स को भी, सो इट इज़ फेयर। टोटल देयर आर 6 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ मेंट बाय नॉट इवन द गोस्ट ऑफ विंग्स, क्या मतलब है इसका कि बिल्कुल भी ज़रा से कोई निशानात कि जितने भी नहीं विंग्स हैं इंसानों के। नॉट इवन द गोस्ट ऑफ विंग मीन नॉट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ अ विंग, कि बिल्कुल भी पर नहीं है इंसानों के। What do the human do in the river and in the van? What do these actions tell us about the abilities of human? Human क्या कर रहे हैं रिवर में, और जहाँ पर रैबिट रहते हैं वहाँ पर इंसान क्या कर रहे हैं। And what do these actions tell us about the qualities of human? और इंसानों की कैसी क्वालिटीज़ के बारे में ये एक्शन हमें बताते हैं। The human ignored the impassable dam in the river. रिवर में इम्पॉसिबल डैम, एक ऐसा डैम जिसको पास करना बहुत मुश्किल है, ह्यूमन इग्नोर दैट। इट इज़ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन दैट द मैन इज़ डेयरिंग एंड दे डिग द अर्थ डीपर देन द रैबिट्स, और खरगोशों से ज़्यादा गहरा इंसान खोद सकते हैं। इट प्रेजेस देयर एबिलिटीज़ ऑफ करेज, डिलिजेंस, फियरलेसनेस एंड इनोवेशन। इंसानों की खूबियों की तारीफ़ की जा रही है, उनके करेज, हिम्मत की, डिलिजेंस, एफर्ट की, फियरलेसनेस, बेखौफी की, एंड इनोवेशन। इनोवेशन इज़ अबाउट न्यू आइडियाज़, इनोवेशन मीन्स न्यू आइडियाज़। सो इंसानों की तारीफ़ की जा रही है इन डिफरेंट सॉर्ट्स। जी स्टूडेंट्स, हाउ डू यू फाइंड द पोएम। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। आई होप कि आप सबको भी पसंद आई होगी। अब करना क्या है, आपने एक दफ़ा आपने पोएम को रीड आउट करना है, देन गो फॉर द लर्निंग ऑफ MCQs, और साथ ही आपने समरी को भी लर्न कर लेना है आज ही, ठीक है। काम को लिंगर ऑन नहीं करना, पाइल ऑन बिल्कुल नहीं करना। जी, तो पढ़ काफ़ी लिया है हमने, थोड़ी सी अब बात कर ली जाए। एक छोटे से मैं आपको कहानी बताती हूँ। इट इज़ फ्रॉम कासिम अली शाह, ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि एक दिन वो बाज़ार गए, ही वॉन्टेड टू बाय सम ग्रेप्स। उसने पूछा कि भाई ये कितने रुपए किलो हैं अंगूर। उस रेडी वाले ने कहा कि ये 120 रुपये किलो हैं। पास ही कुछ गुच्छे से टूटे हुए अंगूर पड़े हुए थे। ही आस्क्ड, ये कितने रुपए किलो हैं।
उसने कहा कि ये हैं 45 रुपये किलो, 120 रुपीज़ पर केजी जो कि गुच्छे के साथ थे, और हाफ से भी कम अमाउंट है 45 रुपीज़ केजी जो कि गुच्छे से उतर चुके थे। कासिम अली शाह कहते हैं कि मुझे वहाँ पे क्लिक किया कि ये एक इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग, ये एक फ्रूट की बात हो रही है कि फ्रूट भी जब अपनी फैमिली के साथ है, यूनाइटेड है, तो वो उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी वर्थ है। बट व्हेन वो बिल्कुल से टूट जाता है, अलग हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, आधी भी नहीं रहती है। तो इंसानों के बारे में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। व्हेन वी आर यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्ग, बट जब हम अलग अलग हो जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, वी आर नथिंग। सो एक दूसरे के साथ रहें और खुश रहें, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, ख्याल रखें रिश्तेदारों का, अपनों का। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।